Okay, so we are starting with 4.2, exercise 4.2, first sum. The question is, show that the lines represented by this equation are perpendicular to each other. So let us learn some basics about 4.2. Now this is the formula of angle between the two lines. It is given by tan theta is equal to 2 root of h square minus ab upon e plus b. When the equation is this, that time you can put the values and get the value of tan theta. Suppose if the lines are given to be parallel, then the angle between them will obviously be 0 degree and vice versa. If the angle is 0 degree, that means the lines are either parallel or coincident. मतलब या तो वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल है तो एक के ऊपर एक। अगर ऐसा होता है तो tan थीटा जो है थीटा 0 है तो tan थीटा भी 0 हो जाएगा और अगर ये चीज़ इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब न्यूमरेटर 0 होगा। तो न्यूमरेटर अगर 0 होगा तो ये चीज़ मिलेगा क्योंकि 2 रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे फिर 2 को वहाँ पे लेके जाएंगे इन शॉर्ट एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी मिलेगा। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर लाइंस पैरेलल है तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है और अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो tan थीटा जो है वो tan 90 हो जाएगा। tan 90 इंफिनिटी होता है और कोई रेशियो को इंफिनिटी होने के लिए उसका डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। तो इसके लिए a प्लस बी जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट से ध्यान में रखने वाले कि लाइंस अगर पैरेलल है तो ये फॉर्मूला और लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो ये फॉर्मूला। Okay, continuing. We have been asked that we have to prove that this equation represents a pair of perpendicular lines. So if we compare this equation with the standard form, we have a as 3, 2h as minus 4, so h will be minus 2, and b is minus 3. By mistake we written h as plus 2, it will be minus 2, and b is minus 3. So obviously when we do a plus b, we get the answer as 0, and this condition states that the lines are perpendicular to each other. Next sum, show that the lines represented by this equation are coincident. This is 9, they have misprinted it, so it's 9y. So using the same concept, this time we will try to calculate this equation, h square is equal to AB. So if I do h square minus AB, I get the answer as 0, which proves that the lines are coincident. And the third question is the same thing. Find the value of k if the lines represented by this are perpendicular to each other. We can do it orally itself. We know that a is k and b is minus 4 and a plus b should be equal to 0. So k ka answer is by default plus 2. So that is left up to you. In the fourth question, find the measure of acute angle between the lines represented by this. So these are very easy questions as we already have the formula of tan theta. So first, second and third I have left up to you. You just have to use this formula, substitute the values of a, b and h and you will be able to get the answer. For the fourth sum, चौथे सम के लिए भी वही है, सिर्फ मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको कैपिटल ए लिया है क्योंकि अगर मैं स्मॉल ए लूँगा तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए जो एक्स स्क्वायर के साथ है उसको कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो ए है, जो एक्स वाई का कोएफिशिएंट है वो 2h होता है, तो 2h जो है वो 8ab हो जाएगा, तो h जो है वो 4ab हो गया। एंड सेम वे में b जो है वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये, अब वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें पुट कर दिया वैल्यूज, सिंप्लीफाई किया है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लिकेशन है, उसको एक्सपैंड किया है, जो चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रहा था उसको सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल किया है, फाइनली एवरीथिंग इज कैंसिल्ड एंड वी हैव माइनस रूट 3। तो वो मॉड है इसलिए tan थीटा जो है वो रूट 3 मिला। तो tan थीटा अगर रूट 3 मिलता है तो लोअर स्टैंडर्ड में हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे tan थीटा रूट 3 होता है। तो थीटा का आंसर है 60 डिग्री, या आपको अगर रेडियन फॉर्म में लिखना है तो 5/3। सो दैट इज दैट। यू कैन ट्राई दी अदर 3 सम्स ऑन योर ओन।
Fifth sum, find the combined equation of lines passing through origin, each of which makes an angle of 30 degree with the line this. I think we will be doing this later on. Yeah. So fifth, referred solved example 4 in textbook. So let us just see the example. Now see the question properly and see the referred example 4. They are very similar, very similar. सिर्फ एंगल अलग है, लाइन का इक्वेशन अलग है. अब देखेंगे तो एंगल और लाइन का इक्वेशन, तो यही सम आपको समझा देता हूँ मैं, वो आप खुद ट्राई करेंगे. तो जो एंगल दिया है उसको यहाँ पे पुट कर दिया. ये जो फॉर्मूला है वो ऐसा लिखा है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जहाँ पे m2 को इन्होंने अज्यूम कर लिया है ये वाले लाइन का स्लोप. तो पहले ये वाले लाइन का स्लोप निकाला, -3/1 मिलेगा. पिछले एक्सरसाइज में देखा है कि अगर लाइन दिया है तो स्लोप कैसे निकालते हैं. तो यहाँ से -3 मिला है, उसको m2 ले लिया है, और जो दूसरा लाइन है उसको m1 ले लिया है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो π/6 दिया है, तो यहाँ पे π/6 आ जाएगा. The formula is tan theta is equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, where m2 is substituted as -3 and theta is substituted as π/6. Now π/6 we know is 30 degree, और tan 30 जो है वो 1/√3 हो गया, ये मिला. अब मॉड हटाने के लिए दोनों तरफ को स्क्वायर कर दिया है पहले, तो ये 1 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये m+3 द होल स्क्वायर, और ये 1 - 3m द होल स्क्वायर बचेगा, और फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है. उसके बाद उसको एक्सपैंड किया और सिंप्लीफाई किया. सिंप्लीफाई करने पे व्हाट वी विल गेट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इन नाउ कंपेयर दिस विद द ऑक्सिलरी इक्वेशन. जो ओरिजिनल पिछले एक्सरसाइज में ऑक्सिलरी इक्वेशन था उससे कंपेयर करेंगे तो ए बी और एच का वैल्यू मिल जाएगा. और एक बार ए बी और एच का वैल्यू मिल गया तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² + 2hxy + by², उसमें ए एच और बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आंसर आ जाएगा. आई जस्ट रिपीट द लास्ट पार्ट. आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन के साथ कंपेयर करने का, दैट वाज समथिंग लाइक bm² - 2hm plus a is equal to 0, something like that. So if I compare it with that, I'll get the values of a, b and h. a का वैल्यू -13 है, h का वैल्यू इट सीम्स लाइक 6 आएगा या -6 ऐसा कुछ तो आएगा, b का वैल्यू 3 आएगा. ये जो वैल्यूज मिले हैं उसको ओरिजिनल जो अपना इक्वेशन था, जो स्टार्ट ऑफ द वीडियो में मैंने मेन इक्वेशन बताया ax² + 2hxy + by², उसके साथ कंपेयर करेंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी. That is our answer. Try this sum on your own, you will be able to understand. Now let us look at the next sum, the sixth one. If the angle between the lines represented by this is equal to the angles between lines represented by this equation, then show that 100h² - ab is equal to a plus b the whole square. Now this is a very easy sum. What you need to do is ये इक्वेशन को ax² + 2hxy + by² के साथ कंपेयर करके आप h, a और b का वैल्यू निकाल लीजिए, उससे आप tan थीटा निकाल लीजिए. ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया है, h, a और b का वैल्यू निकाला, तो ये फॉर्मूला में पुट किया तो tan थीटा 1/5 मिला. अब क्वेश्चन में दूसरा जो लाइन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, तो उसके फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड फॉर्म का ही फॉर्मूला है ये वाला. तो अब ये जो 1/5 मिला है वो इसके साथ हम लोग इक्वेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ. तो 1/5 इज इक्वल टू दिस थिंग, और बस दोनों तरफ को स्क्वायर करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो मिल जाएगी. इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सम. जस्ट हैव अ लुक. सबसे पहले हमने जो इक्वेशन था उससे ए बी और एच का वैल्यू निकाला, और